membrane क्या होती है? Membrane which allows the solvent molecules to pass through it but resist the passage of dissolved substances. ठीक है, so basically that membrane जो कि आपको पता है semi permeable membrane only allows certain molecule to pass through it. So over here it is a property that not all the molecules, only the molecules that have a specified size, that have the tendency can move through the semi permeable membrane. So excess of solvent molecules passing in one direction creates a pressure called osmotic pressure. Now osmotic pressure कब create होता है, कब हम बोलते हैं कि osmotic pressure is there? जब आपके more and more solvent molecules एक particular direction में move कर रहे होते हैं, pass कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो pressure create होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर. आई थिंक ये क्लियर है सबको कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ बेटा व्हाट इज आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन? ठीक है, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. जो सॉल्यूशंस हमारे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर के होते हैं means the solvent is moving in one direction, over there have the same pressure, then we call those solution as isoosmotic solution. ठीक है, पैराटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस विद डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर. अगर आपके सॉल्यूशन का डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर है, टू और मोर सॉल्यूशंस का, तो उनको हम क्या बोलेंगे? पैराटोनिक सॉल्यूशन. ये दोनों टर्म्स क्लियर हैं? Yes, sir. Now beta, this is the very simple diagram which is showing you the process of osmosis. This is your semi permeable or differentially permeable membrane. You have water molecules, you have sucrose molecules. See that how diffusion is taking place of water molecules towards the other end by passing through the semi permeable membrane. But over here there is a one thing, that your water molecules are moving towards the passing the semi permeable membrane and reaching towards the other section, that where the sucrose, but sucrose molecules are not able to pass. Can anybody tell me what is the reason? Sir, because semi-permeable membrane only allows the water molecules to pass through it. It only allows smaller molecules to pass through it. Over here sucrose molecules are not able to pass. Okay, so see, this is the simple picture beta. Hypertonic, isotonic, hypertonic. मैंने आपको बोला था आइसोटोनिक वो होता है when the concentration is equivalent to 0.9% of NaCl. ठीक है, see the isotonic conditions. ये हमारी RBC सेल है बेटा. आइसोटोनिक में क्या है? आपकी सेल्स जो हैं they are normal in shape, means the water that is moving inside the cell and coming out from the cell at a equal level. So what happens? There will be no change in the shape of the cells. This is clear कि isotonic में क्या हो रहा है? There is no change in the shape of cells as the water diffusion is taking place in and out at a equal level. This is clear? Or isotonic? Yes, ma'am. Clear. So see the next beta where I am saying that hypertonic means when your concentration is more than, we are taking in reference to NaCl 0.9% से जब आपकी concentration ज़्यादा है. See the shape of these RBCs. Over here what is happening? More and more water is coming out from the cell. ठीक है, as a result you see that your cells are changing in the shape and they become wrinkled and shrink due to the removal of more and more water from the cell. I think this is also clear to everyone. Yes, ma'am. Now next is hypotonic. Very simply you can see that over here your cells are swelled as more concentration, the water concentration is more, solute concentration is accumulating inside the cell, more and more water is going inside, जिसकी वजह से आपकी cells जो हैं वो क्या होगी? They will be in the swelled form, and finally if more and more
solute will be inside the cell in comparison to outside, what happens? The cell will burst. So this is the picture of RBCs in hypotonic solution. I think all the three कंडीशंस आर क्लियर टू एवरीवन कि आपकी सेल्स की जो अपीयरेंस है उस पे क्या फर्क आएगा आपके उसका टोनिसिटी का. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, ma'am. So next is isotonic solution. So isotonic solution, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, they have the same water potential, means in and out of this cell have the same water potential. The concentration of solute is same on both the sides of the membrane and cell volume will not change. So this is the simple picture over here. It clearly shows that shape of cells is in normal size. Okay. Next is hypertonic. Hypertonic solution is one that has lower water potential as compared to other. So what happens over here? You see that your cells are shrinking. Okay, the solute concentration is higher. जो solute concentration है वो higher है outside the cell and water molecule move out of the cell. जितना ज्यादा आपका water molecule towards out of the cell move करेगा, क्या होगा? आपकी cell जो है वो shrink हो जाएगी. As more and more water is coming outside, the concentration of solute is higher outside in comparison. Ma'am, your voice Ma'am, is not आपकी coming. voice नहीं आ रही मैम. मैम वॉइस नहीं आ रहा. नो मैम, बिल्कुल नहीं सुन रहा. अभी आ रही है मेरी वॉइस? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. हाँ जी. So hypertonic is clear. Next is hypertonic solution. Hypertonic solution that has high water potential as compared to other solutions. Solute concentration is lower outside the cell and water molecules move into the cell. So this is the shape. You will see that more and more the concentration of solute is more inside the cell in comparison to outside. So basically अगर आपकी concentration ज्यादा है cells के तो आपकी cells जो है वो swell हो जाएंगी and finally sometime जब it leads to the bursting of animal cell by overstretching of the cell membrane. तो जब ये bursting होती है, आपकी stretching होती है cell membrane की, तो वहां पे क्या होता है? Lysis of cell occur. Lysis means you can say that killing of bursting of cells has taken place. So this is the hypotonic condition कि आपकी RBCs पे क्या इफेक्ट आएगा. Now this is very simple slide जो कि आपको एक स्लाइड में शो कर रहा है कि आइसोटोनिक में रेड ब्लड सेल्स की क्या शेप है, हाइपोटोनिक में जिसमें वाटर मोर है इनसाइड द सेल, solute is more inside the cell, you will see that this is the shape of your cell. And when hypertonic, जब आपका concentrated solution बाहर ज्यादा है in comparison to inside, तो आपकी सेल जो है वो shrink हो जाएगी. So this will be the shape of your cell. I think this is clear to everyone कि क्या changes हो रहे हैं आपकी तीनों solutions में आपकी RBCs के ऊपर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो बेटा जनरल प्रिंसिपल्स, बेसिकली आइसोटोनिसिटी हमें किस तरीके के प्रिपरेशंस में, किन फार्मास्यूटिकल्स में बहुत जरूरी है. ठीक है, सबसे पहले तो पेरेंट्रल्स. यू ऑल नो पेरेंट्रल्स में हमें आइसोटोनिक बहुत जरूरी है बिकॉज यू आर गिविंग दोज इन द ब्लड प्लाज्मा. सो योर प्रिपरेशन शुड बी आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा. सो बेसिकली पेरेंट्रल के लिए हमारे पास इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं. ठीक है, यू ऑल नो अबाउट इंट्रावेनस इंजेक्शंस. क्या होते हैं? Yes, ma'am. क्या होता मैम जो इंजेक्शन वेन्स में जो डाले जाते हैं. नसों में लगाए जाते हैं, veins में लगाए जाते हैं. दैट इज नोन एज इंटर. तो उनका आइसोटोनिक होना बहुत जरूरी है. सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस क्या होते हैं? सबक्यूटेनियस
मैम जो इंजेक्शन स्किन के नीचे डाले जाते हैं. वेरी गुड. इन दैट केस इट इज नॉट असेंशियल कि आपका आइसोटोनिक भी होना चाहिए. कई बार नॉन आइसोटोनिक विल, बट इट शुड बी वेरी नियर टू दैट कंसंट्रेशन. Intramuscular hypertonic, those which are given in the muscles, intraethical which are given in the spinal cord, always should be isotonic. Whenever we give, they should be isotonic. Nasal drops जो हैं should be isotonic. आप सबको पता है nasal drops हम use करते हैं. So अगर वो isotonic नहीं होगी तो क्या होगा? इरिटेशन होगी, इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, आप बेयर ही नहीं कर पाओगे उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को जो कि आइसोटोनिक नहीं होगा. इट विल कॉज यू प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन टेकिंग दैट. ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जितनी भी आईज के लिए हम यूज करते हैं मेडिकेशन, वो सब भी आइसोटोनिक होनी चाहिए टू मेंटेन द टोनिसिटी. ठीक है. Now, tonicity क्या है? Tonicity is a term that describes the ability of a solution to cause a cell to gain or lose water. So it mostly depends on the concentration of solute or salt on both sides of the membrane. So tonicity कुछ is nothing, वो क्या describe करती है? किसी भी एक solution की ability जिससे वो gain और lose करेगा water को. It is just the diffusion of solvent, that how it diffuse inside and outside the cell. सो बेसिकली टोनिसिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं. सिंपली पिक्चर में देखो, हाइपोटोनिक ओवर हियर द सल्यूट कंसंट्रेशन इज मोर इनसाइड द सेल in comparison to the outside. Over here you can see how many molecules are inside as compared to the other one. Isotonic में बेटा देखो, you have the same solute concentration in and out of the cell, and in hypertonic the concentration is more outside the cell in comparison to the in cell. I think this all 3 pictures are clear about tonicity conditions. yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ बेटा नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी. ठीक है. टोनिसिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? बेसिकली टोनिसिटी मेजरमेंट के लिए हमारे पास 2 मेथड्स है. एक है हीमोलाइटिक मेथड, दूसरा है कॉलिगेटिव मेथड. कॉलिगेटिव मेथड में हम जो यूज करते हैं दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. दैट इज मोस्ट कॉमनली used as a colligative property. आप सबको पता है हमारे पास और भी colligative properties होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? Freezing point. Depression in freezing point, Elevation in boiling Elevation in boiling point. elevation in boiling point, very good. और Osmotic pressure. Osmotic pressure. The reduction in osmotic pressure. और मैम पार्शियल प्रेशर जो रिड्यूस होता है वो भी. vapor pressure, right? Relative loading of pressure, ma'am. paper pressure, ma'am. Good. So beta, first we will be discussing about hemolytic. Beta, just hold for 2 seconds, okay?
स्क्रीन दिख रही है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है. सो फर्स्ट मेथड जो है जिससे हम टोनिसिटी मेजर करते हैं वो होता है बेटा हीमोलाइटिक मेथड. सो हीमोलाइटिक मेथड क्या है? द एक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड is the observation of the effect of various solutions of drug on the appearance of RBC when suspended in those solutions. If there is no change in size and shape of RBCs when immersed in test solution on observing with microscope, then the solution is isotonic to the blood. सो वेरी सिंपल मेथड जिसमें बेसिकली आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब भी आप किसी भी फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन में आप सपोज यू हैव अ ड्रग, ठीक है, उस ड्रग को जब आप किसी सॉल्यूशन में डालोगे तो आपकी अपीयरेंस जो आरबीसीज है उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंज जो है शेप और साइज से हमें पता लगेगा, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में. सो एज आई टोल्ड यू, यू ऑल नो दैट हमारे पास जो 3 फॉर्म्स हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, आपकी जो शेप और साइज है आरबीसीज की वो तीनों कंसंट्रेशंस में वेरी करती है. सो ऑन दैट बेसिस यू विल आइडेंटिफाई दैट आपका जो ड्रग सॉल्यूशन है दैट इज हाइपोटोनिक इन नेचर, दैट इज आइसोटोनिक और दैट इज हाइपोटोनिक. अगर आपकी आरबीसीज एज सच रहती हैं, उनके साइज और शेप में कोई चेंज नहीं आता है जब आप उनको इमर्स करते हो टेस्ट सॉल्यूशन में. टेस्ट सॉल्यूशन मींस वो ड्रग सॉल्यूशन है जिसकी टोनिसिटी हमें चेक करनी है, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन जो है वहां पे क्या होगा? आइसोटोनिक होगा. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर. Yes, ma'am. ठीक है बेटा. मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास एक्यूरेट मेथड होता है, हम इस मेथड को एक बेटा आपको 1 मिनट होल्ड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स. Supriya ma'am, this is first semester. Students, you're getting my voice? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी बेटा. Yes, ma'am. So, बेटा, we usually use, you know, in the laboratory, we usually use hematocrit method, जहाँ पे we calculate the cell volume of RBCs. So basically, I tell you procedure that आप कैसे hemolytic method proceed करते हो. So basically, students, we have 2 capillary tubes. ठीक है, one capillary tube Excuse is. me, Jyoti ma'am. Yes, ma'am. Who is there? Good morning, ma'am. Monica here. Yes, ma'am. Ma'am, actually, DSW ma'am want to interact with the students Okay, ma'am. for 25 Right to 30 minutes. Yes, ma'am. Right now, she want to interact, Okay. and I want to request all the students to kindly invite their parents also. They can, their parents can also interact. Okay. Actually, ma'am, really very sorry. I'm interrupting within your it's okay, lecture. but ma'am, there was nothing message from the like for this. Yes, ma'am. Actually, there was some miscommunication. We have arranged for third semester, but now, ma'am, Okay. want to interact with first semester only. Okay, so I have to be also online, or I have to leave this. Ma'am, it's your wish. If you want to, want to be in the lecture, you can. It's Okay. your wish. You Okay. can also leave. It's Okay. up to you. Okay. Excuse So me, ma'am. yes. Ma'am, what if Yes. the students' parents are not
in condition of meeting with DSW. If they are not prepared, then We need not any preparation, Ankit. If your parents want to interact, they can. You are in the meeting also. अभी आप क्लास की जो मीटिंग में हो ना, यहीं पे आपके पेरेंट्स ने इंटरेक्ट करना है. So ma'am will join your meeting only. Okay, students, you got the message. You have to be here on the line. You can, if your parents are near to you, you can call them, also you can make them sit with you so that ma'am is able to interact with them also. So ma'am will be online very soon. Okay. Okay, students, I am sharing your class link with the Gagan Bhullar ma'am. She is DSW Dean Student Welfare. She will join your link very soon. Kindly ask your parents to be with you to interact with the ma'am. Is it clear to everyone? This is batch A or batch B? Ma'am, this is batch A. Batch A. This is batch A. Okay. Fine, please be in the class. Your attendance will be marked later on, beta, after the session. So everyone, please be on the line. A batch है ma'am ये. Ma'am is joining shortly. Okay, ma'am. Okay. Jyoti ma'am, please stop your presentation. Okay, ma'am. I'm doing. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning, Supriya ma'am. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. Ma'am, switch on your mic, please. मैम योर माइक इज ऑफ. सॉरी फॉर दैट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आपका भी DSW के साथ एक इंटरेक्शन होगा, तो उसके लिए मैं DSW के जो इंचार्ज हैं उनको वेलकम करने वाली हूँ अभी. तो जस्ट गिव मी 2 minutes.
All the students, please be on the line. Ma'am is joining very soon. Please do not leave the meeting. Be on the line. Students, have you called your parents to join? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, thank you. Students, please ask your parents also to join. Ma'am, parents are also in meeting. Okay. Ma'am is connecting in a short while. Do not leave the meeting, please. Otherwise, your attendance will not be counted for a whole day. Do not leave the meeting.
सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो सेशन रखा हुआ है ये मेनली आपके साथ इंटरेक्शन के लिए सेशन रखा हुआ है, आपके साथ और मेनली आपके पेरेंट्स के साथ, कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हो या आपको कोई चीज़ मतलब यू आर नॉट सूटेबल, यू डू नॉट फाइंड इट सूटेबल, और मे बी आपको कोई इश्यूज अगर डिस्कस करने हैं हमारे साथ, तो यूजुअली तो आप कॉलेज में आके डिस्कस कर सकते हो, बट ऑन दिस प्लेटफॉर्म इट बिकम्स बिट डिफिकल्ट, राइट? पेरेंट्स की बेसिकली इंटरेक्शन जो है वो। तो आज जो हमारा डिस्कशन जो हमने आपके साथ रखा हुआ है, अगर आपको कोई चीज़ हमारे साथ डिस्कस करनी है या आपके कोई डाउट्स हैं या कोई और चीज़ है, तो आप वो आज हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारे जो मैडम है डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के जो मैम है गगनदीप भुल्लर मैम, वो भी अभी कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो मेनली आपके साथ और उनका मेनली आपके पेरेंट्स के साथ बात करनी है। आई थिंक मैम हैज ज्वाइंड। मैम, आई वेलकम यू। Thank you so गगन much, मैम, ma'am. A very good morning गुड to all मॉर्निंग of मैम। you. I hope the students are here and the parents are also here. Yes ma'am, they have joined. Guys, could you please put your cameras on? Because as it's an interaction, so I want that we should have a face-to-face interaction with everyone. Please put your cameras on, all of you. Dear students, please put your cameras on. Students, please put your Divanshu cameras has, on. Divanshu is there. Good. Baki? Okay. Good morning, ma'am. Very good morning. Good. Good morning, All ma'am. right. Morning, Very ma'am. good morning. I know you are called at a very short notice, but there were a few things that I wanted to discuss with you and with your parents. One is that I just wanted to know whether you are happy with this online since you have started with your classes. You have been interacting with your teachers, with your HODs, and maybe with your principal, not with me. My department is Department of Student Welfare, and I basically deal with not only academics but all other things that are required for the well-being and overall development of a student. So it's just not about academics, it's about all other things that are essential for your growth. So my dear parents, I wanted to ask you, because you have been at home, students are at home. How do you think, are the students enjoying the classes and are they able to understand? Proper classes लगा रहे हैं ये लोग? Yes? हाँ जी मैम। हाँ जी। Okay. Good. तो इनको आपको लगता है कि मैम ये जो ऐसे एजुकेशन मिल रही है तो बच्चों को help होएगा? I want everyone to please put your cameras on. Put your cameras, beta. क्या लगता है मैम आपको कि जैसे बच्चे अभी क्लासेस लगा रहे हैं, इनको समझ आ रहा है? Are they enjoying? अच्छा, मुश्किल है। मुश्किल है. ओके. कैसे मैम? कैसा लगता है आपको कि मुश्किल क्यों है? कई बार नेटवर्क की दिक्कत होती है, आवाज चली जाती है। हाँ, आप कहाँ से हो मैम? कहाँ पे रहते हो? करनाल में। करनाल में. ओके. और बाकी यमुनानगर. तो मैम आपको क्या लगता है, मतलब समझ में आ रहा है उनको, बच्चों को? हाँ जी, बोल तो है मैम। हाँ जी, आ गया का आगे पता नहीं, इनको पता है। ओके. ऐसा है मैम कि मैंने आप सब से ये भी बात करनी थी कि अगर यूजीसी हमें गाइडलाइंस देती है और आगे हमें कॉलेज खोलना पड़े, नहीं आएंगे. तो आपकी पेरेंट्स की कंसेंट बहुत जरूरी है.
Imran, if my voice is not audible, please check your internet. You can reconnect. Hanji, come मैम देखिए on. I कंसेंट have to ask you people. Hanji. मैम एक्चुअली रहते हैं, देखिए वहां जाने के बाद अगर कुछ भी रहता है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक उसको हैंडल करेगा और कैसे हैंडल करेगा, उसकी क्या उसके लिए प्रिपरेशंस हैं, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव मामला है मैम, बच्चों को भेजना भी और ना भेजना भी दोनों ही मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। सी सर, जो भी अभी यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं कि जो हमने प्रिकॉशंस रखनी है कि 6 फीट का डिफरेंस, क्लासरूम साइज विल बी लेस नाउ, हॉस्टल का रूम साइज विल बी लेस नाउ। साइज, व्हेन आई मीन साइज, इट मीन्स स्ट्रेंथ, राइट? And so then the sanitization of the rooms, of classrooms, of the labs regularly wo hoega, proper thermal checking hoegi, dispensary is available, 24-hour services is available, isolation center is available, right? Baki, it is also mentioned in the UGC guidelines, and main aapko bhi bataungi ki baki hai student ke upar, you know, how to keep your masks clean, keep your sanitizers, keep washing your hands at the daily intervals, right? तो ये सब चीजें हैं, ये बच्चों का है। See, I think sir, it's a mutual responsibility, बच्चों की भी है, हमारी भी है। तो I think अब तो 8-9 महीने घर पे रह के everybody is kind of accustomed to the entire system कि हमने कैसे अपने आप को healthy रखना है, hygienic रखना है, right? Yeah, हमारे end से जो भी है, see, we are always ready for it. We are properly ready for it. But एक बारी हमें information मिल जाए कि हम college खोल सकते हैं, तो when we are good to go. Plus आप लोगों की भी consent जरूरी है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मत सोचिए कि कोई भी चीज forcefully होएगी। जो भी classes लगेंगी, online भी लगेंगी, offline भी लगेंगी। ये नहीं है कि हमने सिर्फ खोल देना है तो सबने आना ही आना है। अभी भी we will be doing online. बट सिर्फ ये होएगा कि कंसिस्टेंसी रहेगी। ये नहीं है कि आज मैं ऑनलाइन करना है, कल मैंने ऑफलाइन करनी है, वो नहीं होएगा। ऑनलाइन वाले ऑनलाइन ही रहेंगे, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन ही रहेंगे, राइट? टिल फर्दर बट मैम देखिए, जो स्टूडेंट्स कैंपस में पहुंच जाएंगे मैम, डेफिनेटली दे वुड बी डूइंग ऑल द प्रैक्टिकल्स आल्सो। यस, बट सर्टेनली द स्टूडेंट्स हु आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ लाइक द स्टूडेंट व्हिच आर एट होम, so how they can manage the practicals, and it is definitely a practical. True, but then this can be done that videos can be made, sir, कि एक तो है कि teacher is doing the practical, here the student will also be doing, things can be captured and the students can see to it. तो I think online का तो सर virtually रहेगा, जब तक आप college में आओगे नहीं तो वो तो virtually रहेगा। Things can be better, some students can make the video while the teacher is performing the practical, and she can circulate among all the students. This can be done, right? But so ऐसा चीज जो हो स्टूडेंट सकती है। मैम कैंपस में होंगे वो तो खुद परफॉर्म करेंगे ना मैम? Naturally, वो तो है ही सर, वो तो naturally खुद ही करेंगे। इतना तो एडवांटेज रहेगा सर। प्रॉब्लम एक्चुअली मैम, see, if they are risking themselves and if they are being coming to the college, I think उतना तो उनको एडवांटेज मिलेगा ही, right? So these are few things which I had to discuss with you. I need your consent on this, ki whether you will be ready to send the child or not, and then accordingly in few days we'll let you know what the decision is and how we're going to start. But please ensure both the cases, online offline, will be there, right? Okay ma'am, what would be the class strength then at the time when you are going to start? Well, it again depends, sir. आपकी class की जितनी भी strength है उसका half. Suppose if in case it is 60, it will be 30. Okay. Yeah. Because it has been mentioned that on the desk जहाँ पे 3 बैठते थे वहाँ 2 बैठेंगे अभी. It has already been mentioned. Okay. And what about the other, ma'am, in the hostel rooms also, ma'am? Like Same. what would be sharing? It was triple sharing or double sharing? It was 4 seaters. Now it will be 2 seaters. 2 seaters now. Yeah. Okay. And what about the charges? Would it be same or it will affect the charges, ma'am? Well, sir, this I have actually no idea because you are the first person who's asking me this question. Certainly, we'll let you know soon. Ki what would be the charges? That we'll let you know, because I'm not aware of it as of now. Because abhi to this was in the process ki hona hai ki nahi hona hai.
So now the questions are coming up Mhm. from your side. We'll look for the answers also soon. Then, ma'am, actually, the one more thing, like Hanji. in the home, though students are customized with all the things and hygienes also, Hanji. but still you see, like when they are in the peer group, so Hanji. in those cases, actually, how it's a human nature. You can't like No, I understand, they will sir, but definitely then sit in the peer group also, and everything would be there, ma'am. So that is the main concern about the health, ma'am. Just so nothing see, else, I ma'am. think Actually, this we to are ready to send the students. so this Mhm. though I think we have to sensitize our children that how they have to maintain the physical distance. Socially they have to interact undoubtedly, but yes, they have to maintain the required Yeah. distance which is there. So this I think we all have to sensitize, and certainly if in case students come to the college, we'll also be discussing all these issues with them on regular intervals. Rather daily we'll be discussing this so that students एक दिमाग में हो, and then everywhere there are SOPs displayed, posters displayed हैं, so that क्या होता है कि जो चीज नजर के सामने रहती है आप उसको ध्यान रखते हो, तो नेचुरली वो पोस्टर्स हर जगह पे डिस्प्लेड हैं, तो बच्चों के दिमाग में भी वो चीज चलती रहेगी. Right, so these things have been taken Right, care ma'am. of. Okay. Thanks, ma'am. Okay, sir. Anybody else, any doubts? Anybody else, any doubts? Okay, then I think it is fair enough. Thank you so much, parents, for being with us today, and thank you, students. If you have any doubt, any problems, your academics, non-academics, anything, kindly feel free to contact us. I'm sending you my email ID and my contact number, so you can contact me anytime. Thank you so very much. Have a great day. Thank you, ma'am. Thanks a lot for interacting with students. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको अगर कोई भी इशू है, कोई भी बात अगर डिस्कस करनी है किसी भी एंड पे, चाहे आपकी एकेडमिक हो, चाहे नॉन एकेडमिक हो, हॉस्टल रिलेटेड हो, कोई भी हो, डीएसडब्ल्यू हमारा जो एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, स्टूडेंट वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो आज का हमारा यही एक था आपके साथ डिस्कशन का मोटो कि अगर कॉलेज खुलता है तो आर यू विलिंग टू ज्वाइन फिजिकली, और आपका प्लस माइनस जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो हमें जानना था. इसके बाद भी अगर आपको कोई पॉइंट डिस्कस करने हैं तो आप अपने सीसीज के साथ या मेरे साथ या डायरेक्टली मैम के साथ भी जो है वो डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. योर क्लास विल रिज्यूम शॉर्टली. जो भी आपकी क्लास चल रही थी वो चलती रहेगी फिर आगे. थैंक यू. हाँ जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. हाँ जी, आर यू ऑल प्रिपेयर्ड Ma'am. Yes, ma'am. for offline mode of education? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Ready, ma'am. ma'am. Everyone ready कि आपके college खुलता है? Yes, ma'am. Everyone is ready? Yes, 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 ma'am. ma'am. And what about parents? Are Ready, they ma'am. also ready? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Ready. I'm getting so much messages. Yes, yes, yes. I Excuse me, think ma'am. everyone want Ma'am, college even खुल जाए. if we say, ma'am, if we see the mortality rate of the young children around of 18, 20 age, 24 age, it is mortality rate is less than 1% also. So I think there is no any kind of afraid of health There issues. is no any kind of afraid, but this is, because this age group is very sensitive. You have a good immune system. That is why you are able to cope up. Otherwise, the persons, those who are not having that much strong immune may somehow get contaminated with this virus. है ना? I think the most concern should be for the teachers instead of children, because children are less prone to these diseases. No. This is a universal virus which can attack anyone over here. There is as such no connection that it will be more affecting. It is affecting overall society. Each age group is, especially those who are having some complications to their body, are more affected with this. So I think some students are writing that they do not want offline this. Okay, but most of you want that your college open up. I think, Hannah, this is Yes, the ma'am. voice I am getting.
Yes, ma'am. ओके, सो हमारा टॉपिक भी आज बीच में ही रह गया, हाउ मच लेफ्ट। चलो आई एक्सप्लेन Excuse me, यू। मैम। हाँ जी, हम जैसे अभी मैम ने बताया था कि हम या फिर सिर्फ ऑनलाइन लगा सकते हैं फिर ऑफलाइन, ऐसे नहीं कर सकते या फिर ऑनलाइन की ऑफलाइन दोनों। नहीं तो मैम नहीं, अगर एक वही मैम बोल रहे थे ना आपको कि आपने चूज करना है। हम ऐसा नहीं हम आज इस चीज को बोले कि हम अब ऑफलाइन कर रहे हैं, उसके बाद अगेन वी कम टू दिस ऑनलाइन। वी हैव यस टू मैम। टेक अ वेरी क्लियर डिसीजन कि हमें करना क्या है तो ना। मैम एक बार अगर हमने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया और उसके बाद अगर एकदम से कुछ कोरोना के केसेस में अगर इंक्रीज हुए केसेस चंडीगढ़ में, तो मैम उसमें फिर क्या होगा? बेटा वही तो है, अभी तो हमें पता ही नहीं ना कि आगे होना क्या है। यस अगर मैम। हम प्रॉपर अपना अवेयर रहेंगे, प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, मास्क पहनेंगे, वन हैंड डिस्टेंस रखेंगे, तो डेफिनेटली सिचुएशन को शायद हम कर सके कंट्रोल, है ना। तो वही चीज यस मैम। हमें देखनी है, हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, और उसके लिए रिस्की ये ना होना हमें मैम एक्सपेरिमेंट। precautions लेनी पड़ेंगी। यस मैम। और मैम हाँ बस सर्विस फिर डेफिनेटली। अवेलेबल होगी? हाँ जी बेटा, वो तो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। आपकी जो हॉस्टल फैसिलिटी है वहां पे भी पूरी सारी चीजें, सारा प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो होगा। ये चीज जो जब खोलनी है तो उसके लिए भी बेटा उससे पहले बहुत ज्यादा तैयारी होगी, पूरा सैनिटाइजेशन होगा, सब कुछ होगा। तभी इस चीज को सोचने के लिए सबसे पूछा जा रहा है, सबकी राय ली जा रही है कि आप लोग क्या चाहते हैं, आपके पेरेंट्स का क्या व्यू है इस चीज के लिए, है ना। तभी उस चीज को डिसाइड किया जाएगा, जो सबका व्यू होगा उसकी कंसिडरेशन के बाद ही इसका वो निकलेगा। यस मैम। नहीं तो मैम मैं तो ये कहता जैसे प्रैक्टिकल्स वाले डे हैं, तो उसमें अगर काफी दूर के तो नहीं आ सकते मैम, पर जैसे चंडीगढ़ या फिर आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो हम्म। प्रैक्टिकल अगर फिजिकली आके सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए आ जाएं, वो वीडियोस बना लेंगे, बाकी ऑनलाइन फिर हम वो लोग पोस्ट भी कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैम सिर्फ अगर प्रैक्टिकल के लिए आ सके तो? बेटा वो तो वही है, फिर वो वही स्टार्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे इस चीज को मैनेज करना है। प्रैक्टिकल्स नो डाउट एक्सपेरिमेंटली अपने हाथ से करना एक अलग चीज होती है, यस और मैम। वीडियो में देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। जो यस कुछ मैम, बच्चे फिजिकली और कश्मीर में रह रहे वर्चुअली हैं, तो। कुछ बच्चे यूपी बिहार में है, कुछ असम में है, प्रैक्टिकल्स के लिए आना, जैसे मैं ही हूँ, उनके लिए यहाँ से possible। 100 मोर देन 100 किलोमीटर यहाँ से दूर है, हम्म। एवरी डे आना या फिर रेगुलरली हाँ वो तो काफी पॉसिबल नहीं है बेटा, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम कुत्तों के लिए ये चीज कर दें, हमें सबका ध्यान रखना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, यस ताकि वो सबके लिए एक जैसा हो, कन्वीनियंट हो, और सबके फेवर में हो। ठीक है। अब हम लोग ऐसे अपने आप कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, हम आपके हिसाब से, आप हमारे हिसाब से, और कैसे हम उस सिचुएशन को मैनेज करेंगे, हमें अब वही सोल्यूशन निकालना है। ठीक है। मैम हाँ जी मैम अगर ऑफलाइन मोड से क्लासेस स्टार्ट होंगी तो कब से होंगी? बेटा, वैसे क्लियरली अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने 16 नवंबर दे मेंशन दैट फ्रॉम दिस डेट ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज हैज टू बी रीओपन थ्रू द ऑफलाइन मोड। ठीक है। बट बेटा थोड़ा सा टाइम जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे अपने आप मैनेजमेंट लेवल जो है वो सेट करेगा कुछ टाइम टेबल, मतलब विद इन लाइक कुछ टाइम दिया जाएगा कि उस हिसाब से प्लानिंग हो, ताकि उसके बाद, पर अगर है तो फिर डेफिनेटली सबके व्यूज लेके कुछ ना कुछ इसका एक्शन सोल्यूशन मतलब निकाला जाएगा। कुछ टाइम दिया जाएगा, जो दूर के बच्चे नो डाउट दे हैव टू डू रिजर्वेशंस, दे हैव टू मेक देयर प्लानिंग्स एंड ऑल, है ना। तो उसके लिए कुछ टाइम दिया जाएगा, ऐसे नहीं होगा कि एकदम बोल दिया कि जी कल से आपने ऑफलाइन मोड पे आना है। ठीक है। मैम मोर ओवर 14th की हाँ दिवाली है और 15th को पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, वो नेक्स्ट डे जी ऑफ बेटा, दिवाली कैसे? 16 से मैम नहीं मोर खुल ओवर रहा है वो, अभी टाइम लगेगा। अगर मैम वो सेम टाइम देंगे 16 को बेटा, खुलते हैं आपको तो टाइम देंगे। इसलिए हम हाँ वो अराउंड तो गवर्नमेंट की तरफ से आया, उन्होंने तो एक डेट डिसाइड कर दी है। दे वांट कि अब इस तरीके से ऑफलाइन मोड स्टार्ट होना चाहिए, बट वो अब पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा कि वो अपने बच्चों को कब तक मतलब परमिशन देगा। बच्चे दूर के हैं, डेफिनेटली उनको तैयारी भी करनी है, उसी हिसाब से फिर वो टाइम दिया जाएगा अगर ऑफलाइन मोड होता मैम है। दिवाली कितने टाइम का ब्रेक मिलता है हमको, और मैम इस टाइम कितना मिलेगा? लाइक इफ इट इज ऑन 14th
तो पहले से बेटा मिला मतलब जो आप लोगों को बेटा एकेडमिक कैलेंडर नहीं शेयर हुआ क्या? नहीं मैम आई थिंक डोंट थिंक सो। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ बेटा, एज पर एकेडमिक कैलेंडर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है उसमें 13 की छुट्टी है, ठीक है, 13 इज फ्राइडे। उसके बाद 14 सैटरडे तो ऑलरेडी दिवाली है तो वो तो छुट्टी होता है आपका। उसके अलावा बेटा जो है आप लोगों की विश्वकर्मा डे की छुट्टी है। सो इट इज 3-4 डेज है जो आपकी छुट्टी रहेगी दिवाली के लिए। मैम 14 को आई थिंक सो सैटरडे है। हाँ, 14 को सैटरडे, आपको 13 की भी छुट्टी है, मतलब मैनेजमेंट छुट्टी है यहाँ पे सीजीसी की तरफ से दिवाली के उसमें। उसके बाद आपका एक विश्वकर्मा डे जो है उसकी भी छुट्टी है आपकी, मतलब 13, 14, 15, आई थिंक 16 मंडे तक आप लोगों की छुट्टी है दिवाली की। मैम टीचर्स कह रहे थे हमें 1 हफ्ते की मिलेगी, पूरी 1 हफ्ते 8 डेज की। नहीं, कौन से टीचर्स ने बोला बेटा? मैम रफ आइडिया दिया था हमको, श्योरिटी नहीं दी थी बट लेकिन दे वर गिविंग रफ आइडिया फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट 14 to 21 maybe. Like this is the festival season, you all know everyone has to have some plans, तैयारी भी करनी होती है। So जब हमारा ऑफलाइन मोड होता था बेटा, हमारे बच्चे जैसे दूर के होते थे तो दे प्लान अकॉर्डिंग टू देयर, जैसे उनको घर जाना था तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे बच्चे ऐसे करते थे कि दे टेक हॉलीडेज लाइक बिफोर द दिवाली। अगर होते भी नहीं थे तो वो अपने साइड डिसाइड करते थे कि हमें घर जाना है तो हम इतने टाइम पे निकल जाएंगे। बट नाउ सीन जो है इस बार वी हैव ऑनलाइन मोड, तो अलग प्रोसेस है, तो अब डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल स्टूडेंट। बट ऑफिशियली जो छुट्टी है दैट इज फॉर 13 ओनली। फ्राइडे को आपकी जो है वो मतलब मैनेजमेंट की तरफ से दिवाली की छुट्टी है। उसके बाद 14 को तो सैटरडे संडे है ही, और 15 को विश्वकर्मा डे वाले दिन भी छुट्टी है, जो एकेडमिक कैलेंडर में मेंशन है, मैं आपको वो बता रही हूँ। मैम छठ पूजा तक छुट्टी करवा दो, उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवा देना, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करवा देना। बेटा ये मेरे हाथ में नहीं ना, इसके लिए तो मैंने आपने अपनी मैम से बात करनी थी ना बेटा, आपने क्यों नहीं की मैम से बात? DSW वाले मैम आए थे, शी वाज आस्किंग यू ना, सो यू शुड आस्क हर दैट मैम वी नीड सम हॉलीडेज फॉर दिस एंड ऑल ना, फिर वो आपको वहां पे अलाउ करते। मैम 10 मिनट के लिए आए फिर चले गए। हाँ, यस तो मैम, we'll send on उन्होंने mail, पूछा भी we'll नहीं send और on मैम mail. नेटवर्क हमारे प्रॉब्लम भी पेरेंट्स थी। वेट कर रहे थे, फिर उन्होंने अभी पेरेंट्स आए तब तक वो चली गई। बेटा एक्चुअली मैम के पास और भी काफी सारी मीटिंग्स थी ना, आई थिंक वो उस वजह से थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, बट नो प्रॉब्लम। अगर आप मैम 16 को है हॉलीडे। ऐसे बेटा थोड़ी हाँ, विश्वकर्मा डे की हॉलीडे है। अगर आप लोगों को कुछ भी इस तरीके का डिसाइड करना है या करनी है बात रिलेशन टू योर हॉलीडेज, ठीक है, इसके लिए बेटर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप HOD मैम से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आप मैम से बात करने, जैसे मैम आप लोगों को बोलेंगे वैसे यू कैन प्लान, ठीक है। बट जो ऑफिशियल छुट्टी है दैट इज फ्रॉम फ्राइडे ओनली, फ्राइडे से, ठीक है। बिफोर आपकी क्लासेस तो बेटा एज यूजुअल होंगी, जैसे अभी ऑनलाइन मोड से चल रही है ना। एक्सक्यूज मैम, आई एम सपोज जैसे हमारी 16 तक है एंड मे बी वी डिसाइड लाइक अ डेट 21 और 22, तो मैम इन बिटवीन जो 3 to 4 डेज होंगे हम उसमें भी तो क्लासेस ऑफ रहेंगे ना, क्योंकि ट्रैवलिंग एंड परचेजिंग बहुत कुछ होगा, तो उस 3-4 डेज में क्लासेस के साथ ये सब चीजें कैसे मैनेज होगी? इफ यू हैव एनी आइडिया। हाँ बेटा देखो, बट दिस आई कैन नॉट से ओवर हेयर बिकॉज दिस यू हैव टू टॉक टू द HOD मैम एंड शी विल, जैसे उनकी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी दैट वी ऑल हैव टू फॉलो, है ना। यू वेयर यू रेसाइड हर्षप्रीत, कहाँ रहते हो बेटा? उत्तराखंड। अच्छा, यू स्टे एट उत्तराखंड, ओके। तो डेफिनेटली बेटा उन सब चीजों के लिए टाइम तो आपको चाहिए, जब आप अपना पूरा सामान वगैरह वो करोगे, सेट करोगे, प्लान करोगे, लेके आना है डेफिनेटली। मैम सपोज दैट अगर किसी स्टूडेंट को कोरोना हो जाता है और उसकी वजह से सबको होने लगे तो फिर उसका रिस्क कौन लेगा? बेटा आप इस चीज को अभी मत सोचो, हमें ऐसे रहना है कि हमें कोरोना ना हो, हमें तो इस सिचुएशन से ओवरकम करना है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है मैम, वो कोई नहीं आपकी बात मान रही हूँ, कॉलेज है ना, वो तो अलग बात है। है कि सब लोग क्या मतलब क्या सबके सजेशंस क्या है, उसी हिसाब से फिर डिसाइड। सजेशन वो मैम तो आई, फिर पेरेंट्स ने बात की, फिर चली गई।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा लंबे स्केल पे फैल जाएगी। क्योंकि अभी पता है हम इस चीज से इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हम सब जो हैं वो घरों पे हैं, हम उतना बाहर निकले नहीं है। क्योंकि अगर आप हमारे कॉलेज की बच्चों की स्ट्रेंथ देखो तो मतलब वहां पे अगर एक भी स्टूडेंट अफेक्टेड होता है तो इसका मतलब वो चीज बहुत बड़े स्केल तक जाएगी। ये तो है मैम। पर बेटा ठीक है, वी हैव टू थिंक पॉजिटिव, देखते हैं अभी क्या होता है, क्या Yes, ma'am. डिसीजन आता है ना। थिंकिंग तो पॉजिटिव है, सपोज दैट मैंने पूछा। हाँ, पर मैं बेटा यहाँ पे अभी इस चीज के लिए कुछ नहीं कह सकती, मतलब वो तो देखो जैसे जो होगा, जब देखा जाएगा तभी पता लगेगा इस चीज का कि क्या करना है इस चीज के लिए, है ना। ऐसे ऑनलाइन में तो ऐसे भी कनेक्टिव इश्यू रहते हैं, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम तो है ही है। ऑफलाइन तो सब चाहते हैं कि कॉलेज आ जाए, हाँ जी बिल्कुल। इसमें तो कोई गल नहीं। हम्म। मैम सभी हॉस्टलर नहीं है, कुछ तो डे स्कॉलर्स भी हो गए मैम। हाँ, काफी बच्चे डे स्कॉलर्स होंगे, मतलब ये तो है। अब वही है, मतलब जो हॉस्टलर्स है उनके लिए भी प्रॉपर इंतजाम करना पड़ेगा ना, सबको ध्यान में रख के इस तरीके की चीज कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप लोग वैसे मैम से बात कर सकते हैं अगर ऐसा कोई इश्यू है। आप मतलब जो ऑफिशियल छुट्टी है वो तो वही है बेटा जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। मैम एक बार कैलेंडर सेंड कर दीजिएगा प्लीज। बेटा वो कैलेंडर जो फर्स्ट ईयर का है वो आपकी सीसी मैम के पास होगा, तो शी विल शेयर द कैलेंडर, बिकॉज मेरे पास आई एम अ सीसी ऑफ यू नो थर्ड सेमेस्टर, तो वो तो उसमें डिफरेंट है आपका पूरा ना, वो नहीं है। तो आप मैम से इस चीज का पूछ लेना, शी विल शेयर विद यू। ओके। ओके मैम। हाँ जी तो ठीक मैम है। सेमेस्टर वाइज छुट्टियां भी अलग अलग होती हैं? नहीं बेटा देखो, ये ऑफिशियल जो आपकी छुट्टियां हैं, बट उसमें ना आपका ये भी दिया होता है कि आप लोगों की अटेंडेंस का क्या कितना पैटर्न है, आपके सेशनल्स कब होंगे, वो सारी चीजें अलग अलग मेंशन उससे होती है, ठीक है। यस मैम। सो दैट इज यू आस्क फ्रॉम योर सीसी एंड शी विल शेयर विद यू। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके। We will continue in the tomorrow's class, okay? And please come prepare with Viva for experiment 1. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. And that will be an interactive Yes, model. ma'am. Don't take tension. You have to learn the experiment. ठीक है, you know the basis of that experiment. ठीक है, तो डरना नहीं है, प्रिपेयर करके आओ, जो भी होगा we will keep it in the interactive session only. Okay? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैम, हाँ जी, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बेटा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ओके थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू मैम। ओके बेटा। थैंक यू मैम। ओके बेटा। अभी नेक्स्ट क्लास कौन सी है बेटा आपकी? मैम दीपिका मैम तो ऑफ है, लीव पे है, तो Yes, ma'am. किसकी क्लास? ओके ओके।